I am Miss Ketki Parmanand, Assistant Professor in Physics from Maharaja Agrisane International College, Raipur, Chhattisgarh, gives an online lecture on the topic Field Effect Transistor. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर क्लास के पेपर 2 जो है उसकी यूनिट 3 का टॉपिक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसे कुछ सब टॉपिक में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन, देन टाइप्स, जे फैट। एक्चुअली जे फैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फैट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ जे फैट, electric circuit for JFET, its working, characteristics curve, parameters, advantages, disadvantages, and last but very important part of any topic, its application. Next, introduction. The ordinary or bipolar transistor has two disadvantages. It has a low input impedance, and second one, it has a considerable high noise level. To overcome this problem, JFET, or generally known as FET, is introduced, which has a high input impedance and low noise level than ordinary transistor. Actually, JFET जो है या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो दो डिसएडवांटेज जो बीजेटी के या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसको ओवरकम करता है. फर्स्ट इज, इन केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देयर इज़ अ लो इनपुट इम्पिडेंस. इम्पिडेंस मीनिंग क्या होती है इन जनरल हम समझने के लिए बोलें तो इम्पिडेंस मीन्स रेजिस्टेंस. किसी भी इलेक्ट्रिकल वेरिएबल लाइक करंट और वोल्टेज, उसके करंट की फ्लो में जो हिंदी में बोले तो जो बाधा होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो इन सिमिलर में इफ़ वी आर टॉकिंग इन जनरल, that means resistance is nearly known as impedance. Okay, now bipolar junction transistor के केस में यह है कि उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो लो होता है एज कम्पेयर टू फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और इसीलिए इन द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर हम बीजेटी को यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन इसी चीज़ को ओवरकम कौन करता है? JFET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके, नेक्स्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. Field effect transistor is voltage control device and it has a 3 terminal: source, gate and drain. यहाँ पे एक सर्किट सिंबल शो हो रहा है. ये रिप्रेजेंट करता है जब भी हमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए एक सर्किट सिंबल लेना है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ जैसे कि दिख रहा है कि ये एक टर्मिनल है जिसको हम कहते हैं सोर्स, ये कहलाता है गेट और इसे कहते हैं ड्रेन. जैसे कि हम जानते हैं इन केस ऑफ बीजेटी में भी हम इसी तरीके का डायग्राम यूज़ करते हैं लाइक दिस, जिसमें हम कहते हैं एक टर्मिनल होता है बेस, एक होता है एमीटर और एक होता है कलेक्टर. ओके, इन अ सिमिलर वे हियर collector is equivalent to drain, emitter is equivalent to source and base is equivalent to gate. Okay, next, types of field effect transistor. Actually this flow chart gives the whole types or in the general types of transistor. So basically transistor is of two types: BJT means bipolar junction transistor. Then bipolar junction transistor is divided in NPN transistor and PNP transistor. Another type is field effect transistor. Field effect transistor is again divided in two categories: junction field effect transistor and metal oxide semiconductor field effect transistor, which is generally known as MOSFET. In general, we can call this as MOSFET. Now, junction field effect transistor has only one type of mode of operation, which is known as depletion mode. Depletion mode, in a similar way, MOSFET is again divided in two categories: depletion mode and enhancement mode. Now,
there is one question that what do you mean by or what do you understand by depletion mode and enhancement mode. तो डिप्लेशन मोड का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अभी उसके सर्किट सिंबल में देखा फैट के कि वहाँ 3 टर्मिनल है, गेट, सोर्स और ड्रेन. तो जब भी गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 होगा बट फैट जो है वो ऑन केस में है, तो इस टाइप के मोड को हम कहते हैं कौन सा मोड, डिप्लेशन मोड. बट जब और इसी का अपोजिट केस व्हेन VGS इज 0 बट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दिस डिवाइस इज इन ऑफ स्टेट, then this type of mode is known as enhancement mode. Okay, next, then depletion mode is again divided in two category, N channel, P channel. In similar way, depletion mode for MOSFET is divided in two category, N channel, P channel, and enhancement mode is also divided in N channel and P channel. Actually, N channel, P channel is categorized on the basis of type of semiconducting material. Okay, now next, junction field effect transistor. Junction field effect transistor is a 3-terminal device in which current is controlled by only one type of charge carrier, either hole or electron. यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की बात आ रही है, आइदर होल और इलेक्ट्रॉन. तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो करंट या कंडक्शन पे जो कंट्रोल होता है वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर के कारण होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि एन टाइप मटेरियल में जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल होते हैं. बट इसका अपोजिट हम यूज़ करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इन केस ऑफ बाईपोलर, इसीलिए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका मीनिंग ही ये है कि वहाँ पे जो कंडक्शन है वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर से कंट्रोल होगी. बट इन दिस केस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज unipolar device. That means conduction is controlled only by either hole or electron. Next, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो हुई है. यहाँ से जिससे समझ में आ रहा है कि ये वाली जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि फैट या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है या इसके मतलब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है. और ये वाली जो पिक्चर है वो शो कर रही है कि जब भी हम किसी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करें तो उसको वो किस तरीके से दिखता है. ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ जे फैट. सो जे फैट जो है वो जे फैट में 3 टाइप के टर्मिनल होते हैं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा. बट इसको अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर या बोलें उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है. जैसे यहाँ 2 टाइप के जे फैट दिख रहे हैं, एक है एन चैनल और दूसरा है पी चैनल. अब यहाँ पे ये जो टर्मिनल है इसे क्या कहते हैं, एस फॉर सोर्स, जी फॉर गेट एंड डी फॉर ड्रेन. ओके, सो नाउ जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होगा ये हमें समझना है. तो इसके लिए ये जो सबस्ट्रेट लिया गया एन चैनल बनाने के लिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का सबस्ट्रेट लेंगे जिसमें पी टाइप मटेरियल की हैवी डोपिंग करेंगे इस तरीके से साइड बाय साइड. ओके, पी टाइप मटेरियल की किस तरीके की डोपिंग होना चाहिए, हैवी डोपिंग, पी प्लस मीन्स हैवीली डोप्ड. अब जब यहाँ पी टाइप मटेरियल की हैवी डोपिंग करेंगे इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे क्या फॉर्म हो रहा है, जंक्शन. यहाँ पे एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है. ओके, तो और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जब हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो टर्मिनल बनते हैं, जैसे कि हम बात करें कि ये टर्मिनल कौन सा होगा, मेटल का बना होगा, ये टर्मिनल किसका बना होगा, मेटल का बना होगा। तो इस मेटल को, इस पूरे जो बेसिक मटेरियल है हमारा, जो बेसिक डिवाइस है, उससे हमें क्या करना होता है, इंसुलेट करना होता है। तो इसीलिए ये वाला जो मटेरियल है वो कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ओके, इन अ सिमिलर वे पी चैनल है, पी टाइप मटेरियल का सबस्ट्रेट लेंगे और एन टाइप मटेरियल की क्या करेंगे, हैवी डोपिंग करेंगे। ओके, so these are all about basic construction of junction field effect transistor. Next, ये तो हम समझ चुके हैं एन चैनल जे फैट और पी चैनल जे फैट किस तरीके का होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल बाइसिंग फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब हमें वोल्ट मीटर से या एमीटर से कनेक्ट करना है, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हमें उसको एज एन मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है उस डिवाइस से, हमें जब कुछ उसकी वर्किंग करानी है तो हमें उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल बाइसिंग। जैसे कि हम इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर भी जानते हैं कि एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग हम किसको कहते हैं, जब पी टाइप मटेरियल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो। इसका अपोजिट, जब पी टाइप मटेरियल नेगेटिव से कनेक्ट हो और एन टाइप मटेरियल पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो इस टाइप की बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग, और इस टाइप की बाइसिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब हमें ये देखना है कि ये तो हो गई बीजेटी की बात कि वहाँ हम किस तरीके से बाइसिंग करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ जेफेट यहाँ वो रूल फॉलो नहीं होते जैसे कि बीजेटी में होते हैं। यहाँ के रूल्स थोड़े अलग हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज इज़ ऑलवेज इन रिवर्स बायस्ड। ये हम अच्छे से याद रखना है। पहला रूल क्या है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज की बाइसिंग कैसे होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी। ओके, रिवर्स बाइसिंग, अच्छा यहाँ समझते रिवर्स बाइसिंग कैसे हो रही है। जब हम एन चैनल जे फैट की बात करें, एन चैनल जे फैट का मतलब ये है कि जो सोर्स टर्मिनल है वो कौन से मटेरियल का बना होगा, ऑब्वियसली है कि वो ऑब्वियस सी बात है एन टाइप मटेरियल का, और गेट टर्मिनल जो होगा वो कौन से मटेरियल का बना होगा, पी टाइप मटेरियल का बना होगा। तो पी टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव terminal of battery and N is connected with positive terminal of battery. So VGS is now in reverse biased. Okay, next thing कि VDS की बाइसिंग किस तरीके की होगी, मतलब ड्रेन टू सोर्स जो कनेक्शन है वो किस तरीके का होगा। इसके लिए एक रूल याद रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो सोर्स वाले पोर्शन से हों रिपल या उनका रिपल्शन हो टुवर्ड्स द ड्रेन, और अट्रैक्शन हो, मतलब रिपल्शन हो फ्रॉम द सोर्स एंड अट्रैक्शन हो टुवर्ड्स द ड्रेन। ये सिंपल सा रूल याद रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल बाइसिंग रटने की ज़रूरत नहीं है। तो सोर्स जो है वो भी एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है, ड्रेन जो है वो भी एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है। तो सोर्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या चाहिए, रिपल्शन चाहिए, और ड्रेन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, बिकॉज हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। तो ये सिंपल रूल है बाइसिंग। ओके, नेक्स्ट, इन अ सिमिलर वे पी चैनल। अब पी चैनल जो है, पी चैनल जे फैट में सोर्स जो होगा वो बना होगा पी मटेरियल का, और गेट जो बना होगा वो होगा एन मटेरियल का। तो हमें इसकी बाइसिंग किस तरीके की करनी है, रिवर्स बाइसिंग। तो पी टाइप एन टाइप मटेरियल जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और पी टाइप मटेरियल जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो VGS किस में हो गया, रिवर्स बाइसिंग में हो गया। सेकेंड, यहाँ से फिर वही है कि होल्स, बिकॉज इन केस ऑफ पी चैनल जे फैट नाउ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज
होल, तो होल का रिपल्शन कहाँ से होना चाहिए, सोर्स से होना चाहिए, और ड्रेन में क्या होना चाहिए, होल्स का अट्रैक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ड्रेन टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और सोर्स टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल बाइसिंग ऑफ JFET. नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, वर्किंग ऑफ JFET, कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अभी जैसे हमने बाइसिंग देखी, तो एक्चुअली बाइसिंग और वर्किंग दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कि जब तक हमें बाइसिंग नहीं समझ में आएगी तब हमें वर्किंग नहीं समझ में आएगी। ओके, तो वर्किंग ऑफ JFET में ये वर्किंग ऑफ JFET भी हमने डिफरेंट केसेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट ये है कि इनिशियली व्हेन VGS मीन्स सबस्क्रिप्ट में GS है, मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज, और VDS मीन्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ एक और टर्म यूज होता है ID मीन्स ड्रेन करंट। ओके, so initially when VGS is 0 volt, VDS is 0 volt, then only depletion region are formed at the PN junction. Okay, इन सारी वर्किंग को हम और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्किंग क्लियर है इनिशियल लेवल पे, व्हेन VGS is 0 volt and VDS is VGS is 0 volt and VDS is also 0 volt, देन जैसे ये N चैनल दिख रहा है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सोर्स टू ड्रेन मूव कर रहे हैं, और यहाँ जो PN जंक्शन फॉर्म हुआ है यहाँ पे डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गया है, बिकॉज दिस इज इन रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो ये एकदम इनिशियल लेवल पे है। और इन सिमिलर वे होल्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं थ्रू P चैनल। नेक्स्ट केस इज व्हेन VGS is 0 volt but VDS is varies from 0 to VP. Now question is what is VP? VP is known as pinch off voltage. इसको हम क्या कहते हैं, pinch off voltage कहते हैं। तो when VGS is 0 volt and VDS is positive, a decreasing reverse bias potential is applied across PN junction from drain to source, resulting in wide depletion at drain and which goes towards source. The second point is due to VDS current flows, drain and source currents are equal. Next point is charge flow is uninhibited and is limited by resistance of N channel between drain and source. Okay, ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, VGS 0 volt वो इससे शो हो रहा है। नेक्स्ट ये है कि VDS की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं 0 to VP। तो यहाँ ये जो वेरिएबल बैटरी है उससे भी ये क्लियर हो रहा है कि VDS की वैल्यू हम 0 to VP वेरी करें। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हमने VDS की वैल्यू वेरी करना शुरू किया तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि N चैनल में जो ड्रेन टर्मिनल है वो कौन से बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब N टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और जब हम इसकी बात करेंगे PN जंक्शन की, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो टुवर्ड्स द ड्रेन, वो क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और सोर्स की तरफ जो विड्थ है वो उसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ हम देख रहे हैं VGS 0 volt तो है, बट यहाँ पे जो N टाइप मटेरियल है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ का जो PN जंक्शन है इस तरफ का वो कैसे है, एज फॉरवर्ड बायस। ओके, और यहाँ का जो इस तरफ से है, तो मतलब जो ड्रेन की तरफ का है वो कौन सी बायसिंग में हो चुका है, रिवर्स बायस में। और इसीलिए जो ड्रेन की तरफ जो है
वो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, जबकि सोर्स की तरफ जो है वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, कम होती है। इस केस को एकदम क्लियर समझना है कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ, डिप्लेशन लेयर मतलब जहाँ पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा है, और जहाँ पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहाँ डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा। लेकिन ड्रेन की तरफ क्या होगी, उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जबकि सोर्स की तरफ कम होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन VGS is 0 and VDS is VP, with initial increase of VDS from 0 to VP, ID increases linearly. Okay, further increase of VDS results in channel width reduction due to depletion widening, causing slowdown in increased of ID. As VDS is equal to VP, it appears that two depletion regions touch each other and ID is equal to IDSS. ये सारी चीज़ों को भी हम डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब क्या हो गया, VDS इज इक्वल टू हो गया VP, VP मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर की विड्थ, जैसे हमने VDS की वैल्यू इंक्रीज करते गए, ड्रेन की तरफ क्या हुआ, रिवर्स बाइसिंग बढ़ती गई और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया किसी पर्टिकुलर वोल्टेज VP के लिए, VDS इज इक्वल टू VP के लिए, कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है दोनों तरफ के पीएन जंक्शन की, वो क्या हो गई, वो एक दूसरे को क्या करने लगी, टच करने लगी, जिससे कि करंट का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन, जिसको हम आगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में और अच्छे से समझेंगे। तो दो वर्किंग है JFET की, फर्स्ट व्हेन VGS is 0 and VDS is increased from 0 to VP, and second when VGS is 0 but VDS is equal to VP. Okay, next, when VGS is negative and VDS is positive, negative VGS results in similar curve with reduced VP and saturation. Pinch off voltage drop in parabolic manner as VGS goes more negative. At VGS is equal to minus VP, JFET will be off. For VDS greater than VDS max, breakdown occurs. इसका मतलब यह है कि जब हम VGS की वैल्यू और अब नेगेटिव करते जाएंगे, इसका मतलब कम करते जाएंगे, इस नेगेटिव मीन्स उसकी वैल्यू कम करना है हमें, है ना, और VDS की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, तो जो सैचुरेशन रीजन है, जो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में और इसे समझेंगे, वो उस सैचुरेशन रीजन को ही मेंटेन किया रहेगा। कब तक, जब VDS की वैल्यू VDS मैक्स तक ना पहुंच जाए, और उसके बाद क्या होगा, एवलांची ब्रेकडाउन वहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। हम जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि PN जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, है ना। तो उसी तरीके से JFET जो है उसके भी दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रिकल बाइसिंग हमने समझी इसके पहले JFET की। अब हमें समझना है कि जब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व या ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने हैं JFET के लिए, तब हम किस तरीके से JFET को वोल्ट मीटर और एमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ दिख रहा है कि वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, ठीक है, V1 V2 मिली एमीटर। अब बेसिक ये समझना है कि वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, और एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, तो VGS कैसी बाइसिंग होना चाहिए, रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए। तो VGS जब रिवर्स बाइसिंग होना चाहिए तो इसका मतलब गेट जो है
वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए? थ्रू रियोस्टेट, बिकॉज यहाँ पे हर एक कंपोनेंट की मीनिंग है। जैसे ये जो रियोस्टेट यूज़ हुआ है वो इसलिए यूज़ हुआ है ताकि ये जो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बहुत कम वोल्टेज में वर्क करती हैं, और ताकि ये ख़राब ना हो जाए इसीलिए हम इसे थ्रू रेजिस्टेंस ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, नाउ गेट टर्मिनल यहाँ से दिख रहा है किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। और सोर्स टर्मिनल किससे कनेक्ट है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बिकॉज ये एन चैनल जे फेट है तो इसका मतलब ये किस टाइप की बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइसिंग हो गई। सिमिलर वे सोर्स टर्मिनल किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। और ड्रेन टर्मिनल किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। ओके, एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जैसा कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव का बैटरी का होता है उसी तरीके से हमें कैसे कनेक्ट करना है? वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। और यहाँ भी उसी तरीके से जैसे बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं उसी वे में हमें वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है टू ड्रॉ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, नेक्स्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर जेफेट। अब हमें जेफेट के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की स्टडी करनी है। ये देखना है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो किस तरीके का हमें मिलता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? एट कांस्टेंट VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्राफ ड्रॉन बिटवीन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ID इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कांस्टेंट VGS पे VGS की वैल्यू क्या रखेंगे? हम कांस्टेंट रखेंगे। और वेरी किसको करेंगे? VDS, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज जैसे 1 वोल्ट पे 2 वोल्ट पे इस तरीके से कांस्टेंट रखेंगे। और VDS मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच क्या ड्रॉ करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हमें 3 टाइप के रीजन मिलेंगे, एक ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड ब्रेकडाउन रीजन, जो हम आगे ग्राफ में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों को कंबाइन करके एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमिक रीजन। मतलब जब इनिशियली व्हेन VDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ID, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे हम? ओमिक रीजन बोलेंगे। इस पर्टिकुलर रीजन में जो डिवाइस है, जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वो किस तरीके से बिहेव करता है? एज अ रेजिस्टर। ओके, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसे कौन सा रीजन बोल रहे हैं? ओमिक रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रीजन दिख रहा है? पिंच ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन भी इसे हम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम VDS की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट VDS की वैल्यू इंक्रीज करने से ID की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। वो कैसी हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? पिंच ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन। उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होती है VDS की, उस पर आने के बाद क्या होता है? सडनली जो है वो ID की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। और व्हेन at any particular value of voltage the value of current is suddenly increases, so this region is known as breakdown region or avalanche, and this breakdown is particularly known as avalanche breakdown. Okay, next ये सब हमने समझ लिया है कि कैसे ओमिक रीजन, पिंच ऑफ रीजन, एवलांशी रीजन फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि द डिवाइस गेट्स डैमेज ड्यू टू एवलांशी ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ये क्या क्यों है? ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स पहले हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे जेफेट के लिए। उसके बाद जैसे कि अभी तो हमने ये सिर्फ एक ही ग्राफ बनाया है, बट ये डिफरेंट VGS के लिए इस तरीके के ग्राफ बनते हैं। तो जो डिफरेंट वैल्यू लिए हैं हम VGS की, उसको इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और इस एक्सिस पे क्या लेंगे हम? ड्रेन। जैसे कि हमने ड्रेन करंट ली हुई है
इस एक्सिस पे हम क्या कौन सी करंट लेंगे, ड्रेन करंट लेंगे, और इस एक्सिस में कौन सी क्या लेंगे, VGS लेंगे, ठीक है। और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और कैसा ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET. Next, JFET parameter. There are mainly three types of parameters. First is AC dynamic resistance. Its value lies between 10 kilo ohm and 1 mega ohm. यदि हम एकदम इजी मैनर में समझें तो AC डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET, ठीक है। इसका मतलब जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पहले ड्रॉ करेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्या होगा, हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ y एक्सिस में, यहाँ x एक्सिस में, तो जब हम स्लोप लेते हैं तो क्या होता है, dy/dx, ओके, यही होता है स्लोप। तो वैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID। इसका मतलब v का कौन से एक्सिस में ले रहे हैं हम, x एक्सिस में ले रहे हैं, और I कौन से एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस में ले रहे हैं। तो जब हम इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप निकालेंगे तो डेल्टा ID अपॉन क्या होगा, इसके लिए इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD। तो इसका मतलब जो AC डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस है वो इस पर्टिकुलर स्लोप का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज DC डायनेमिक रेजिस्टेंस। जब हम एक पर्टिकुलर कर्व के लिए निकालेंगे, मतलब पूरे डिफरेंट कर्व्स के लिए ना लेके सिर्फ एक पर्टिकुलर कर्व के लिए निकालेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे, DC डायनेमिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, म्यूचुअल और ट्रांस कंडक्टेंस। इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स और मोर and it is of the order of 3 millimho. Simply it is a reciprocal of AC drain dynamic resistance, okay. So this is all about parameters of JFET. Now advantages of JFET. So first is its input impedance is very high, so the current drawn by the gate is quite negligible. Second is the noise level is very low. Third is its power gain is very high. And fourth one is it is smaller in size and it has efficiency and longer life. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसका है कि इट हैज़ अ हाई इनपुट इम्पिडेंस, ओके। इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, हाई। सो इसे हम एज अ बफर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन है। JFET हैव ड्रॉबैक ऑफ स्मॉलर गेन बैंडविड्थ प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू BJT। इसकी जो बैंडविड्थ गेन बैंडविड्थ होती है वो BJT के कंपेयर में स्मॉल होती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। तो इसके जो बेसिक एप्लीकेशन है उसमें एक है बफर एम्पलीफायर, सेकेंड वन इज़ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, थर्ड वन इज़ in voltmeter. The high input impedance of JFET is useful in voltmeter to act as an input stage. Okay, so these are all about disadvantages and application. Thank you.